हेलो स्टूडेंट्स। तो आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोशल अकाउंटिंग। तो लेट अस सी व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। तो आफ्टर studying this chapter you will be able to understand the concept of social accounting, social reporting and social auditing. So we will do this chapter in two parts. So today first part we shall discuss here what are the approaches of social accounting by different accounting thinkers, by different social researchers, and how to make the social financial statements like social income statement, social balance sheet, and then we do the case studies. So this is social accounting intro part. Why we do social accounting? We have already read in our class 10 plus 1 in business studies, in BCom First Principles of Management, कि business should be socially responsible. What are the social responsibilities of the business? So we have different stakeholders, consumers, employees, suppliers. So this is a social fabric. We are taking the resources from society, and what are we giving to the society? We are using the natural resources, and the way our industry or our business is spreading various type of pollution, water, air, or noise. So means what is the impact of organizational actions to the internal and external stakeholders? So this is basically the social account. So business should act in an ethical manner, should address the social, cultural, economic, and environmental issues. The profit is no more the fundamental concept now कि हमारा बिजनेस मोटिव है कि प्रॉफिट अर्न करना. Gone are the days. Now if you are doing something for the society, something for the stakeholders, this will polish your brand image, this will groom your organizational image. So a business in these times should be socially responsible. The social responsibility helps the individual, organization, governments a positive image of business and society with a positive contribution to the bottom line. Today we are using the triple bottom line reporting after the Companies Act 2013 because corporate social responsibilities has become an integral part of the corporate governance. बॉटम लाइन स्टैंड फॉर कि लास्ट जो आपका इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, दैट इज द बॉटम लाइन रिजल्ट. बट नाउ इट हैज बिकम अ ओल्डर कॉन्सेप्ट in these days. Now triple bottom line reporting means you have to not only to look for the profits only, you have to consider the other factors also. There are 3 P's of triple bottom line reporting after the profit: people, profit, and planet. Means you have to consider the society at large. You have to keep in mind the environmental degradation, how to protect the environment like biodiversity, solar energy, and all these things. That means you have to work not only for your own business, but you have to keep into account the environment and society both. So this is called triple bottom line reporting.
Next we see the social concept of business. The first is environmental reporting, then is social reporting, then is sustainable reporting. But we will discuss here the social accounting part only because sustainability is the vital aspect. सस्टेनेबिलिटी का मीन्स अगर जनरली हम मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है इंटैक्ट द रिसोर्सेस हम मोस्टली बात करते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी बट इट हैज आल्सो टू एस्पेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल I have talked about triple bottom line reporting, so these three will be considered: economic, that is profit; social, that is people. This is not plant, this is planet. This is planet. So this is planet. Planet stand for कि we have to protect our environment also. So keep in mind the environmental factor. Sustainability does not only mean the environment, it covers all the three aspects, that is economic, that is social and environment. तीनों को कवर करता है तो मैंने तीनों को नीचे डिफाइन कर दिया देखो सोशल सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी दिस इज द लास्ट क्योंकि बॉटम आपने पढ़ा social sustainability basically employs customer and community. Okay, what is the responsibility of our business towards the society, towards the community, towards the masses, towards the public, towards the HR, human resource? Environmental sustainability includes the impact of resource usage. Okay, we are taking various type of resources from the society. We are using the water. We are using the air. The resource usage, hazard substances, waste and emission on physical environment, different type of chimneys we are using and we are polluting the environment. Economic sustainability means focus on business efficiency, productivity and profit. So here we see this is social accounting concept was introduced by GRS in 1942. He defined it is nothing but the accounting of whole community or nation. It is also known as national income accounting earlier होल कम्युनिटी और नेशन जस्ट एज द अकाउंटिंग ऑफ प्राइवेट अकाउंटिंग कि जैसे आप अपनी फर्म की अकाउंटिंग करते हैं वैसे ही आप सोसाइटी की अकाउंटिंग करेंगे तो दीज आर द नेम्स सोशल अकाउंटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग और सोशल रिपोर्टिंग so these are the various name given to social accounting so this is the meaning we have already read in our company law that corporate social responsibility stands for a continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large. This is the definition given by World Business Council for Sustainable Development WBCST. कि खाली हमने अपना पार्ट जो मैंने बॉटम लाइन की बात की कि खाली हमने बॉटम लाइन को नहीं देखना वी हैव टू इम्प्रूव वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज कि आप एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट कि आप पब्लिक एट लार्ज के लिए क्या करते हैं मान लो आपने पार्क बनवा दिया आपने बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए तो दिस इज कम्युनिटी डेवलपमेंट तो सीएसआर इंडिया में जो डेवलप हुआ 2013 में कंपनी लॉ आने के बाद एमसीए ने फर्स्ट सेक्शन 135 नोटिफाई किया तो इसके 2014 में सीएसआर रूल्स बना दिए गए तो कौन कौन सी कंपनियां अडॉप्ट करेंगी सीएसआर जिनका टर्नओवर
सॉरी, नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले वो एक CSR कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी की ये एक्टिविटीज क्या है, उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसा हम प्रोविजन बनाएंगे उस पर खर्च होना चाहिए। दीज आर जस्ट क्लू, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, और भी हो सकते हैं, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द MCA: eradicating extreme hunger and poverty, promotion of education, promoting gender equality and empowering women, reducing child mortality and improving maternal health, combating HIV, AIDS, malaria, and other such type diseases. Like today, we are facing the pandemic COVID, so this can also be the part of CSR. Social accounting, मैंने बता दिया आपको, measuring, monitoring, and reporting stakeholders, employees, consumers, suppliers. These are and environmental effects of an organization. Different author ने define किया, Ralph Estes states social accounting as the measurement, reporting, internal or external, of information concerning the impact of an entity and its activities on the society. NAA USA, National Association of Accountants, का एक बार क्वेश्चन जो आपका आता है इसी नाम से आता है कि NAA ने सोशल अकाउंटिंग क्या डिफाइन किया है। तो it as the identification, measurement, monitoring and reporting of the social and economic efforts of an institution or society। कि ये फर्म ने अपने प्रॉफिट ने अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज की, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना, उनको मॉनिटर करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, दैट इज द सोशल अकाउंटिंग। तो आफ्टर रीडिंग दिस इन नटशेल, सोशल अकाउंटिंग मेजर्स द एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने क्या खाली अपना प्रॉफिट बॉटम लाइन को नहीं देखना, क्या इफेक्ट आया हमारे स्टेक होल्डर्स को, उसको मेजर करने की, व्हाट आर द सोशल बेनिफिट्स एंड सोशल कॉस्ट। सोशल अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अकाउंटेबिलिटी, कि हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या जवाबदेही है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। कम्युनिकेटिंग द फर्म्स इकोनॉमिक एक्शंस ऑन द सोसाइटी क्या है, तो ये जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना कि हमारा इम्पैक्ट क्या है, क्या सोशल बेनिफिट्स होंगे, क्या सोशल। अब जैसे रिफाइनरी अगर पानीपत में लगा, हमने देखा, तो पहले हमने देखा कि यहाँ लोकल जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। बाद में लोगों ने कहा इतना पोल्यूशन होगा, तो उन्होंने क्या है कि वी विल प्रोवाइड अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी करेंगे। तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस तरह से कि अपनी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हर साल हिंदी दिवस मनाती है रिफाइनरी, लोगों को जागरूक करने के लिए विजिलेंट डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी के जो भी पार्ट है वो करती है। तो क्या जनरल पब्लिक को अवेयर करना है, उसके लिए क्या सोशल बेनिफिट्स हैं, क्या सोशल कॉस्ट है, इनका मेजरमेंट, इनकी आइडेंटिफिकेशन, इनकी रिकॉर्डिंग, जैसे सोशल। तो ये स्कोप है। RL ब्रह्मट ये सोशल थिंकर हैं, और NAA, ऐसे तो 5 इसने दिए थे ब्रह्मट ने, हमने इंक्लूड करके 4 बना दिए। ये एरियाज हैं: कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सोशल अकाउंटिंग के स्कोप में सबसे पहला हमने दिया कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मीन्स बिजनेस की पॉलिसीज का इंडिविजुअल पब्लिक या कम्युनिटीज पे क्या इम्पैक्ट, तो हमने आउटसाइडर्स पे इम्पैक्ट क्या मेजर करना। तो आउटसाइडर क्या है, इट इंक्लूड्स क्लब्स, सोशल क्लब्स बेसिकली, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइब्रेरीज, लॉन्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि हमने अपनी पब्लिक के लिए, अभी मैंने एग्जांपल आपको रिफंडिंग का दिया। तो मीन्स what is the contribution of our organization towards the general public or community। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन, कि हमारी पॉलिसीज का HR पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड एज एसेट्स, हमने HR में पूरा डिस्कस किया है। तो वर्क फॉर डाइवर्सिटी का मतलब विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट जेंडर, रेस, कास्ट, क्रीड, सबको अपना एम्प्लॉयमेंट देना, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे किसी भी तरह से वो डिसेबल है, कोई कास्ट, क्रीड या जेंडर की तरफ आपने फिट मतलब नहीं देखना है।
तो डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट क्रीड्स, डिफरेंट कास्ट के पीपल को जब आप अकोमोडेट करते हैं। ट्रेनिंग डेवलपमेंट लर्निंग कास्ट होती है कंपनी की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, merit rating in performance appraisal, industrial revolution relation, sorry, industrial relations कैसे, welfare programs for the HR because HR is our asset. So what is the contribution of our business towards the human resources, कि कैसे आप उनको grow up करते हैं, कैसे आप उनको develop करते हैं, कैसे उनको social security benefits आप provide कराते हैं. तो दिस इज एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन की एनवायरमेंट रेस्टोरेशन के लिए हमने क्या क्या काम किया. डिग्रेडेशन तो हमने कर दिया, जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स मीन प्लास्टिक को आपने कम करना है, वेस्ट को आपने मैनेज करना है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ईटीपीज, एनवायरमेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, एयर प्यूरिफायर्स. तो मीन्स वी शुड फॉर्म अ पॉलिसी, we should formulate a policy to keep the environment clean and green. So what are the environment contribution? Later on हम केस स्टडीज में करेंगे, आपको बताएंगे किस किस कंपनी ने क्या क्या किया. पब्लिक और सर्विस कंट्रीब्यूशन. This is not public, this is product. Again, this is wrong. This is not public. This is product basically. यहाँ मैं लिख रहा हूँ. तो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन या सर्विस कंट्रीब्यूशन क्या है, कि प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी आपने मेंटेन करनी, कोई फेयर एडवर्टीजमेंट आपने नहीं देनी है उसकी, कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग नहीं करनी, इको फ्रेंडली पैकेजिंग होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, लेबलिंग जो है वो क्लियर एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट होना चाहिए. तो मीन्स हमने अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो रेंडर करनी है पब्लिक को, वो क्या हो, सोशली एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. तो ये स्कोप था सोशल अकाउंटिंग का. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स. तो वी कैन आवर सेल्फ डिफाइन ऑल दीज थिंग्स, कि सबसे पहले अपने नेट कंट्रीब्यूशन, अभी आपको बताया कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन क्या है, एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हमने देखना है, इसको आइडेंटिफाई करना. स्ट्रैटेजीज हमने बनानी है कि क्या हमारी सोशल प्रायोरिटीज है और उनके साथ हमें कैसे कंसिस्टेंट रहना. जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव ये हैं, उसके लिए ये प्लान एंड प्रोसीजर्स हैं, कैसे उनको अपने अकम्प्लिश करना है, कैसे अचीव करना है, वो क्लियर होना चाहिए. डेवलपमेंट, कि कैसे आप सोशल कॉस्ट बेनिफिट्स प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, मैंने अभी बताया कि क्या प्लान होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होंगे. तो मीन्स वी हैव टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर for meeting the needs of the consumers, for meeting the needs of the society, for meeting the needs of community and other stakeholders. So one should have to keep these objectives in mind while framing the social accounting. तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर, कि हमने इसके अंदर देखा सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है. तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द अप्रोचेस एंड मॉडल्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग. दिस इज द कंप्लीट टॉपिक. केस स्टडीज भी हम इसमें सीखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज फॉलो कर रही हैं. Stay with me. Happy learning. Have a nice day. Thank you. Subscribe my channel Pankaj Archaeology and also subscribe the Facebook page. Thank you.